Hello to all the DKT viewers. My name is Apurva Singh. I'm originally from UP, Jilla Badod Bagpat, and I did my graduation from University of Delhi. I did my post-graduation from University of Delhi itself and was a recipient of Award of Excellence in my Masters. In my Masters itself, I started preparation for UGC NTA NET exam, and I qualified this exam with 99.805 percentile in my second attempt. Through this video, basically, I will share my journey, my strategy of UGC English Literature, and this video is basically for those who are in graduation, who are in masters, and who somehow also discontinued their education after some period of time and want to give it a kickstart yet again. So before actually talking about my journey, I would want to talk a bit about what this exam is about. So UGC NTA NET, which is the Union Grant Commission through the National Testing Agency, conducts national eligibility test in different subjects to basically determine the eligibility of the students for the candidates for assistant professor and for PhD, which is the Junior Research Fellowship. So we need to understand that the top 6% of the students basically in every cycle get eligible for NET exam, which is the National Eligibility Test. And in that 6%, the top 1% actually get the JRF, which is the Junior Research Fellowship. And it's the same for every subject, for every cycle. And that is why, after which it becomes very important for us to know why UGC basically conducts NTA NET competitive exam. So this exam basically, determines the eligibility of the PhD candidates to basically give them a sort of an enrollment in different universities to basically promote the research in the higher education system. So why one should even prepare for this exam? Well, I would say if one is planning to contribute into the domain of academics, if one is planning to contribute their lives in the research domain, this is definitely one competitive exam for you. And if you're planning to have a career in in academia, then of course this exam actually gives you a kickstart for becoming an assistant professor also in universities across India. So so now talking a bit about myself, I did my schooling from Queen Mary's, Tisazari, and I had PCMB in my 12th. After which I did my graduation and post-graduation in English literature itself from North Campus. Initially, it was a bit of a shift for me since I was a science student, and from sciences to literature, it was a complete novel thing for me. But I guess in this entire journey, I had one support system, my brother, who has been there with me through all the thick and thins, and of course after parents. So it is very important for you to have a very strong support system, especially if you're in every journey whatsoever. So I had one, and I was fortunate enough to have that in my life, because of which I was able to not just qualify this exam but also top in my masters, and then of course also get admission in PhD with rank 1 and 83.33 percentage. So it is very important for one to have a good support system in any kind of journey whatsoever. Now coming back to this exam, though I knew a bit about this exam in my graduation, but I structurally started my preparation in my masters, and it was only in the third semester of my masters that I was able to qualify this exam. So in my first attempt, I was not able to even qualify NET, and in my second attempt, I was able to qualify JRF with 99.805 percentile in the 2021 December 22 June cycle. So
you know, I was at the same time also simultaneously working on my PhD proposal in my master's itself. And after qualifying JRF in my second attempt, I got admission in PhD in University of Delhi with rank 1 and 83.33%. So, you know, this diachronic account of my academic background sounds very structured today and is very well laid out. However, it was not the case when I was actually preparing for this exam. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने आते हुए 15 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, और जब मैं घर आई थी और वो सारे क्वेश्चन मैंने वापस से देखे तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से आते थे. सो इट्स अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट द एग्ज़ाम फोबिया. जो उस हॉल का फोबिया होता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना प्रेशर ओरिएंटेड होता है कि आप आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं. So it's very important for you to have also a confidence to even crack this exam. और ये confidence आपका तब आता है जब आप well prepared हो, आपकी हर units के ऊपर आपकी command हो, और आपकी एक लौती एक ऐसी strategy हो जो आपकी personal unique हो. तो वो बहुत important होती है इस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी competitive एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप prepare करना चाहते हैं. Now, I will not vouch for the fact that you can qualify this exam in just 1 year or 6 months or 3 months or without even preparation. लेकिन if you are very determined, if you are very consistent, and if you're very honest in yourself, you know, during this preparation, you will definitely crack this exam. और मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो आपको आपकी जर्नी में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा. सो इफ़ यू नो गो टू द UGC नेट वेबसाइट फॉर द सिलेबस, इंग्लिश लिटरेचर की 10 यूनिट दी गई है जिसके अंदर ब्रॉड जॉनराज मेंशन्ड है. यानी कि यूनिट 1 में जैसे मान लीजिए ड्रामा है, यूनिट 2 में पोइट्री है, यूनिट 3 इज़ अबाउट फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज एंड सो फोर्थ. ये बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है. आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया है कि आप ये वाली नॉवेल्स पढ़ लीजिए या ये शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ लीजिए. तो हमेशा इसके लिए मैं कहूँगी लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स, यू नो, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग अ लॉट for the correct material, for the correct guidance, and for the correct amount of books and the material they need to actually you know, use for this particular preparation. So मैंने अपने experience से कुछ books हैं जो you know select करी हैं जो मैंने अपनी preparation में use करी थी और वो मैं आपके साथ share करना चाहूँगी. So if we come to paper 2, so paper 2 is basically of 200 marks and it has 100 questions in total. So these 100 questions are basically your English literature questions, your main core paper questions, and the paper 2 is basically the one which you should actually be even giving a lot of time. इसलिए आप जब UGC की वेबसाइट पे जाते हैं और आप सिलेबस देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें सिर्फ यूनिट्स में मेंशन किए हुए हैं आपके बिगर जॉनरास, जैसे ड्रामा है, पोइट्री है, नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. लेकिन आपको पर्टिकुलरली ये नहीं बताया गया कि कौन से ऑथर के कौन से बुक या कौन से नॉवेल्स आपको प्रेफर करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं अपनी रेफरेंस के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. तो इसलिए जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी उनको आप अपने PYQs के साथ कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस पूरी जर्नी में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बुक्स को किस तरह से जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं PYQs को सॉल्व करने के लिए. PYQs और MCQs दोनों ही. तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं कि आप सारी बुक्स जो भी मैं आपको अभी बताऊंगी वो सब पहले पढ़ने बैठ गए हैं और उसके बाद PYQs कर रहे हैं. अगर आपको अपना बेस डेवलप करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट कि आप अपनी पहले मान लीजिए अगर M.H. अब्राहम है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बाइबल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आप उससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने भी उसी से शुरुआत की थी, तो ऐसे मत कीजिए कि आप पूरी बुक उसको पहले पढ़ रहे हैं और उसके बाद PYQs कर रहे हैं, क्योंकि आप भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि PYQs को कैसे आप रिलेट करेंगे. तो इसलिए आप पहले एक पेपर को लीजिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिए. उसका मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है जैसे what is how does you know Shyam Salvadorai's Funny Boy is described, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द नॉवल ऑफ मैनर्स, पिक्चरिस्क नॉवल और द कमिंग आउट ऑफ एन एज नॉवल, और चौथा एक और अगर मान लीजिए आप
गॉथिक नॉवल, ठीक है। तो उसमें से अगर आपको आंसर, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट दीज बेसिकली कैटेगरीज आर अबाउट। तो आपको सिर्फ उसका आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, आपको बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपको ये बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। तो आप PYQ से बुक पे जाइए, बुक से PYQs पे मत जाइएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैंने की थी, और जब आप रिगरसली डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके 3 स्टार एरियाज़ कौन से हैं और आपके 1 स्टार एरियाज़ कौन से हैं। नाउ व्हाट इज़ 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार एरियाज़? 3 स्टार बेसिकली मैं उन एरियाज़ को बोलती हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं PYQs में। आप अग्री भी कर रहे होंगे इस चीज़ से कि लिटरेरी थ्योरी, एंड इफ़ यू सी द पैटर्न ऑफ PYQs फ्रॉम द लास्ट couple of years, literary theory, Indian literature are some of the areas from where these questions are coming up to a larger extent. तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो पर्टिकुलर बुक इन पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पहले आप अपना PYQs को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बार बार डेली रूटीन में अपने मान लीजिए सुबह आप PYQ कीजिए, एक रात को PYQ कर लीजिए, और बीच वाले टाइम को आप अपना चाहे तो पेपर 1 के लिए यूज़ करिए, या फिर आप कुछ बुक्स जैसे आप पढ़ रहे हैं उनके लिए यूज़ करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। सो basically what I'm trying to say is कि you need to supplement your knowledge of the books with your PYQs in order to crack this particular exam. Now coming to unit 1 of paper 2, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आपको मैं कहूँगी आफ्टर MH अब्राहम विच इज़ द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, है आपकी बुक द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राउटलेज कंपेनियन और आपका विलियम जे लॉन्ग्स, दीज आर द बाइबल ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। चाहे वो यूनिट 1 हो, चाहे वो यूनिट 2 हो, चाहे वो यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 5, इनके लिए आप स्पेसिफिकली आपको और कोई बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो MH अब्राहम को पढ़ना शुरू कीजिए, उसको बहुत अच्छे से, बहुत रिगरसली फॉलो कीजिए। उसके बाद आप जंप कर सकते हैं राउटलेज कंपेनियन या फिर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन को, या फिर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप विलियम जे लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। इन 4-5 यूनिट के लिए, जैसे पहली ड्रामा हो गई, दूसरी पोइट्री, तीसरी आपकी फ़िक्शन है, चौथी आपकी नॉन फिक्शन पोइट्री है। सो इन सब बुक के लिए, इन सब यूनिट्स के लिए आप ये वाले बुक्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू यूनिट 5 विच इज़ द लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, उसके लिए एक बुक मैंने यूज़ करी थी जो कि है लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन फॉर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड बुक, लेकिन अगर आप उसको नैरो डाउन करके इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो वो भी, आई गेस इट्स सफिशेंट। Then there is another unit which is unit 6 of this particular paper, which is English in India, History and Evolution and Futures. So उसके लिए मैंने एक बुक यूज़ करी थी, AK मल्होत्रा की एक बुक है, Indian Literature, A History of Indian Literature in English. वो बहुत अच्छी बुक है, उसको मैंने मेरे ख्याल से अपने मास्टर्स से शुरू किया था पढ़ना। सो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आप इन्हीं बुक्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो विलियम जे लॉन्ग हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन हो, चाहे आपकी राउटलेज हो। तो ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम MH अब्राहम, जिससे आप शुरुआत करेंगे या आप करना चाहेंगे। सो कमिंग टू नाउ यूनिट 6 विच इज़ इंग्लिश इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। उसके लिए आप AK मल्होत्रा की एक बुक यूज़ कर सकते हैं। वो बुक मैंने भी यूज़ करी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करी मैंने। स्पेसिफिकली इंडियन लिटरेचर के लिए मैंने ज़्यादा वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा बेस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ठीक ठाक था, तो मुझे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप AK मल्होत्रा की इंडियन लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कल्चरल स्टडीज़, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया बन चुका है स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कल्चरल स्टडीज़ हो गया, आपका लिटरेरी थ्योरी हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया,
of course after British literature, which is anyway a 5-star area. तो कल्चरल स्टडीज़ को आप कैसे कवर करेंगे? कल्चरल स्टडीज़ बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन में इलेक्टिव पेपर भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो ले लेते हैं, कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो आपको कल्चरल स्टडीज़ के बारे में भी बताते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा कल्चरल स्टडीज़, तो आप प्रमोद के नायर की एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़, वो बुक यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने बुक बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करी थी कल्चरल स्टडीज़ के लिए, एंड आई हैव रेड इट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। और वो बुक इस तरह से लिखी गई है कि आपको उसे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो कल्चरल स्टडीज़ का चाहे वो बैकग्राउंड हो, कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे ऑथर्स हो, वो सब कुछ आपका कवर हो सकता है इस बुक के थ्रू। सो आई हैव गिवन गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर बुक इन पर्टिकुलर, अपार्ट फ्रॉम M.H. Abraham, Routledge and Oxford Companion to English Literature. Now coming to Unit 8, which is Literary Criticism. Literary Criticism के लिए आप An Introduction to Literary Criticism by B. Prasad भी use कर सकते हैं. Apart from that, there is one more very lucidly written book, which is Literary Criticism from Plato to Present, an introduction by M.A.R. Habib. So that is also a very good book if you are planning to have a good knowledge and also do your PhD in this particular region. I guess ये दोनों books बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप उनको use कर सकते हैं. Unit 9 के लिए जो कि literary theory past past to present, post world war second की यूनिट है, उसके लिए आप बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी यूज़ कर सकते हैं. मैंने ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी अपनी ग्रेजुएशन से. आई वाज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर बुक. तो जब मैं इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, आई जस्ट सर्व थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई हैड ऑलरेडी नोटेड इन दैट बुक. नाउ द लास्ट यूनिट इज़ योर रिसर्च मेथडोलॉजी. उसमें आप एक बुक है C.R. कोठारी की, वो आप बुक यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप साथ साथ अपनी PhD की भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना सिनॉप्सिस बना रहे हैं या फिर आपका कोर्स वर्क चल रहा है, तो उस वक्त भी आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको हेल्प करेगी ये बुक. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट आई वुड ऑल्सो से आपको ज़्यादा कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी में डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. आप इस बुक को अपने पास रखिए. जब भी अगर आपको कुछ लगे कि PYQ में कुछ पूछा गया है रिसर्च मेथडोलॉजी से, तो आप एक बार इस बुक को रेफ़र कर लीजिए. इस पूरे पेपर 2 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके PYQs, आपके MCQs, शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हैं PYQs और बुक्स को साथ में दोनों को सप्लीमेंट करते हुए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक आते हैं, जब आप अप्रोच करते हैं एग्ज़ाम को, तो उस वक्त आप ये सब कुछ सारी बुक्स सब नहीं पढ़ सकते हैं. तो इसलिए आपके नोट्स उस वक्त जो आपने बहुत सक्सेंटली बनाए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं. और मेरे को भी वही बहुत ज़्यादा काम आए थे, क्योंकि मैंने अपने 2 रजिस्टर्स बनाए थे स्पेसिफिकली, विच वाज डेडिकेटेड टू पेपर 2 अलोन. और एक छोटा सा एक मंत्रा है, उसको आप आप भी फॉलो कर सकते हैं. जो मैंने पेपर 2 के लिए किया था वो था कि आप फेमस ऑथर्स को याद रखिए और उनके लेसर नोन वर्क्स को कोशिश कीजिए आप उनको ही उनके बारे में ज़्यादा पढ़ें. सो देयर इज़ लाइक इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट नो मोर द फेमस ऑथर एंड देयर लेसर नोन वर्क. सो दैट्स अ मंत्रा, दैट्स अ चीट कोड, वट एवर यू कैन से इट. सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, आई गेस विकीपीडिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स. कभी कभार क्या होता है कि बुक्स में, चाहे वो राउटलेज हो चाहे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन हो, उसमें ज़्यादा नहीं पता चलता है कि जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर नहीं मिल पाते, कभी कभार नहीं भी मिलते. तो आपको उस वक्त विकीपीडिया ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो ऑनलाइन सोर्सेज में मैंने 2 ही अवेल किए थे. मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है, मैंने कोई पेड कोचिंग नहीं किया था. सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया था, सब कुछ खुद ही एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी. और इट इज़ ओनली आई गेस, and self studies helps a lot, okay? So do not get dependent on any पकी पकाई खिचड़ी पहले से ही at such a vulnerable age. तो मैं यही कहूँगी कि आप खुद से कोशिश कीजिए सब कुछ खुद ही अपने रिसोर्सेज को, और उसमें मज़ा भी आता है और आपको ज़्यादा पता भी चलता है. सो मैंने सिर्फ एक चैनल रिग्रेसली फॉलो किया था, वो था वलद स्टडी सर्कल, जो टेलीग्राम चैनल था.
उसके ऊपर बहुत सक्सेंट नोट्स होते थे हर एक ब्रिटिश पीरियड के या फिर मान लीजिए इंडियन लिटरेचर के या फिर कल्चरल स्टडीज़ के, उसमें नोट्स होते थे, उसमें ऑथर के नाम होते थे, उनकी बुक्स होती थी। अगर मुझे लगता था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा विकीपीडिया पे पढ़ लेती थी और उनको अपने नोट्स बना लेती थी और रात को सोते समय एक बार उसको रिवाइज़ कर लेती थी। तो पेपर 2 के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि आप अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए, आप अपने बुक्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखिए, इधर उधर ना भागे कि पेड कोचिंग करेंगे तो ही आपका ये क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में डर गई थी बहुत ज़्यादा और मुझे ऐसा लगता था कि ये बिना कोचिंग के एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। और इस डर की वजह से मैंने आते हुए 15 क्वेश्चन जो मेरे खुद के लाइक जो पढ़े थे कभी ग्रेजुएशन में कभी मास्टर्स में, वो आते हुए मैंने गलत करे थे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, तब मेरे ख्याल से आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक in actually cracking this exam. This is it about paper 2. Now coming to paper 1. पेपर 1 के लिए मैंने एक बुक यूज़ करी थी, सिर्फ एक बुक यूज़ करी थी, वो थी केवीएस मदान। ठीक है, केवीएस मदान इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बाइबल टू वट एवर सब्जेक्ट यू आर इन विद रेफरेंस टू पेपर 1। सो वो आप अगर चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गेट इट इन एनी लोकल मार्केट, वो आपको बहुत ईजीली अवेलेबल है। अमेज़न पे भी मेरे ख्याल से वो अवेलेबल है, मैंने तो मार्केट में जाके ली थी। सो उसमें सारे यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी। उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पोर्शंस हैं सिलेबस से रिलेटेड, और सिर्फ वही एक बुक थी जो मैंने रिलीजियसली फॉलो की थी। सिंस आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट तो मुझे मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मैं हर दिन सुबह सुबह मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करती थी और उसके बाद फिर पेपर 2 पे शिफ्ट किया करती थी। सो सबसे पहले मेरा जो दिनचर्या था वो इस तरह से शुरू होता था कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने थोड़े बहुत जो भी अपने नोट्स बनाए थे रात के वो सॉल्व करती थी, उनको थोड़ा सा पढ़ती थी और उसके बाद फिर स्पेसिफिकली मैथ्स सॉल्व करने के लिए बैठ जाती थी। तो आई यूज़ टू स्टार्ट विद एम.एच. अब्राहम इन द मॉर्निंग। उसको थोड़ा सा पढ़ा, अपने पुराने नोट्स जो रात के नोट्स थे उनको दोबारा से फिर से देखा, फिर उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस लगाए। उनको लगाने के बाद फिर मैं PYQ सॉल्व करती थी और PYQs के साथ साथ अपनी कुछ बुक्स भी रख लेती थी जो मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए होती थी। एंड देन अगेन एट नाइट अराउंड 9 आई यूज़ टू सॉल्व अ कपल ऑफ MCQs, तो मैं वो भी सॉल्व किया करती थी। और ये मेरा बहुत ही रिगरसली आई यूज़ टू डिलीजेंटली एक्चुअली फॉलो दिस, बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी और कम से कम 6 महीने मैंने इस रूटीन को फॉलो किया था। और आफ्टर विच आई देन क्वालिफाइड नेट एंड JRF बोथ इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। सो कमिंग बैक टू पेपर 1, दिस इज़ वन बुक, KVS मदान की बुक है। और अगर आपको लगता है कि KVS मदान की बुक बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो एक यूट्यूब चैनल था जो मैंने फॉलो किया था, वो भरत सर का एक यूट्यूब चैनल है, वो आप भी देख सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें उन्होंने बेसिकली क्रैश कोर्स के फॉर्म में सारे यूनिट्स को समझाने की कोशिश की है और वो बहुत अच्छे से इनफैक्ट समझाते हैं। तो जो जैसे इंडियन लॉजिक है या फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम है या फिर हायर एजुकेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारे कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनको मैंने उधर से कवर करा था और वो इस तरह से समझाते हैं कि वो आप PYQs करने की और आपका मन करता है। तो आई गेस वन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इफ़ यू आस्क मी इज़ भरत सर्स चैनल, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी रेफ़र कर सकते हैं। बाकी तो मैंने और कुछ नहीं किया था। और PYQs ऑफ कोर्स इज़ ऑल्सो देयर फॉर पेपर 1 एज वेल। एक आईफर नेट PYQs आता है जो टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 2014 से लेके 2023-24 तक सारे PYQs आपकी एक कंपाइल्ड PDF फाइल बनी हुई है, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आप कहीं पे मिस आउट हो गया है, तो देयर इज़ अ लिंक डिस्क्रिप्शन ऑल्सो गिवन बिलो from where you can actually get my PDF of the entire strategy which I've used, which I've used for this particular exam, paper 1 paper 2 दोनों के लिए, तो you can also check that out. Beginning theory
An Introduction to Literary and Cultural Studies by Peter Berry is also given in the link description below, so you can check that out as well. अगर आपको किसी भी बुक को ढूंढने में या फिर एक्सेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मैंने उसका लिंक भी अटैच कर दिया है सब बुक्स के साथ, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल. And thanks a lot to DKT for giving me this opportunity and giving me this platform to share my experience with all of you. Thank you.